Hello student, we will continue the interrupt classes, and in these lectures we discuss about the RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5, and we also discuss about the set interrupt request, set interrupt mask, that is called as your SIM. And now we start the 8085 maskable and vectored interrupt. And before we discuss, this is INTR, this is the maskable, but it is a non-vectored interrupt, and it will be enables and disable. There is in two instruction sets are used: enable interrupts or disable interrupt instructions are used. Here there is a maskable vector. In this vectors we will add some mask factors. It will be discussed in the next later on. Now the 8085 has 4 masked and vector interrupt, that is RST 5.5, RST 6.5 and RST 7.5, and there is one is called as your INT, and it masked and vector, sorry, not the 4, it's 3. The 8085 has 3 masked and vector interrupt, that is RST 5.5, RST 6.5 and RST 5.5, 7.5. They all are maskable. And maskable, it means says that you will be has a software to enable the interrupts and disable the interrupts. It is automatically vectored according to the following tables. And suppose we written as RST 5.5, अगर interrupt की बात करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, what are the address, the 5.5 is multiplied by 8, we getting the 44, and this is in the decimal form. This 44 is convert into the hexadecimals, we get this value 22002C. In the same way, this RST 6.5, if you multiply by 8, we getting the decimal values, and that decimal value is converted into the hexadecimal form. In same way, if you RST 7.5, this 7.5 multiply by 8, we get the decimal value, and that decimal value is converted into the hexadecimal. So these are the address we have automatically generated by the microprocessor. It means, इसका मतलब ये है कि suppose this is your microprocessor and this is your 8085 microprocessor, and suppose there is an RST, there is an one in maskable and vectored interrupts are coming. Suppose this interrupts are coming, and this interrupt, suppose RST 5.5 interrupts are coming, the 8085 microprocessor understand what is the address. There is an automatically the address are generated, and that microprocessor will send to that particular address. Suppose this is your memory and the address is 002C. Suppose this is your address is, suppose this is the address is 002C. Then if the interrupt RST 5.5 is coming, the microprocessor understand what is the address, and there is an automatically the address are generated. That address are stored in your memory in the processor, and so it will be sent to that particular address. And inside the memory, जो ये आपका जो गिवन मेमोरीज है, इस मेमोरी के अंदर आपका जो पार्टिकुलर कंडीशंस का इंस्ट्रक्शंस रिटर्न आउट, ठीक है. तो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड इन द मास्केबल एंड वेक्टर्ड इंटरप्ट. बट जब आप लोग INTR की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग इंटरप्ट रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग इंटरप्ट रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे, उस केस में क्या था, उस केस में था कि हम लोग को जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, रीसेट द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, और आउटसाइड ऑफ द डिवाइस जो RST 0 से RST 7 विच वन इज़ द एक्टिव, उसका हम लोग एड्रेस को फिर सेंड करते थे. तो आउटसाइड से हम लोग एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर रिसीव करता था, और उसके बाद दैट विल बी सेंड टू द मेमोरी. बट इस केस में क्या होता है, वेक्टर्ड इंटरप्ट में माइक्रो प्रोसेसर, जब प्रोसेसर के पास जब वो इंटरप्ट आता है तो प्रोसेसर जब इंटरप्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, he knows what are the address are already written in your memory, and that will be go to directly, it will be sent to the given address. Now next,
There is a masking RST 5.5, RST 6.5 and RST 7.5. The three interrupts are masked 2 levels. These three interrupts are masked with 2 levels. 2 लेवल पर हम लोग मास्किंग करेंगे और हम लोग जब INT या इंटरप्ट रिक्वेस्ट को 1 लेवल पर मास्क करते थे, एक डेट इज योर इंटरप्ट इनेबल एंड या disable interrupts. So that is in one way it will be enables and disable. Only one flip flops are required to it will be enables and disable. But यहाँ पर हम लोग masked in 2 levels through the interrupt enable flip flops and enable and disable instruction that is similar to your INTR में जो हम लोग करते थे. The interrupt enable flip flop control whole the maskable interrupt process. तो सबसे पहले आप देखिए ये जितने भी मास्केबल इंटरप्ट्स हैं, जब तक आपका इनेबल इंटरप्ट्स ऑन स्टेट में नहीं होगा वी कैन नॉट बी वर्क. आपका जो इंटरप्ट है वो आउट मतलब माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट रीड, माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड आउट नहीं कर पाएगा. तो सब जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपको बताया गया था कि आप तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई के मोड में, जैसे आपने कहा था कि हम आज 4 घंटे तक पढ़ेंगे, तो आपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया, आपने कॉलबेल को ऑन ऑफ मतलब कॉलबेल को स्विच ऑफ कर लिया. तो इसका मतलब ये है कि देयर इज एन नो वे टू इंटरप्ट्स आर कमिंग. आपका कोई भी वे नहीं है कि इंटरप्ट्स कमिंग हो सके. तो दिस आर द मास्केबल इंटरप्ट, क्योंकि आपके पास इनेबल और डिसेबल करने की पॉसिबिलिटीज है. Through the individual mask flip-flop that control the ability of the individual interrupts. Through the individual mask flip-flop that control the ability of the individual interrupt. These flip-flops are controlled by interrupt individually. देखिए आपके पास RST 5.5, RST 6.5 और RST 7.5 में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक मास्केबल इंटरप्ट होता है. एक तो स्विच आपके पास होता है इंटरप्ट इनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट. वन इज कॉल्ड इंडिविजुअल मास्क को इनेबल करना. मतलब RST 7.5 को अगर आप सिर्फ इनेबल करना चाहते हैं या RST 6.5 को इनेबल करना चाहते हैं या RST 7.5 को इनेबल करना, मतलब इंडिविजुअल इनेबल करने की भी एक स्विच पॉसिबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं मास्क इनेबल. वी विल बी सी इन द फिगर देन वी अंडरस्टैंड वेरी वेल. तो देखिए क्या होता है इन दिस फिगर. दिस इज द मास्क इंटरप्ट. All are the mask interrupt. This is RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. INTR we already discussed. This is your maskable and non-vectored interrupt. And in this case, suppose this is the output and this is the interrupt enable flip-flop. If this is the interrupt enable, that is your EI. This is the EI. If the interrupt enable is on, means says that if the interrupt enable is active, it means it is equal to 1. If the interrupt enable is high, then all maskable interrupts are enabled. सारे maskable interrupts क्या होंगे? Enable हो जाएंगे. मतलब all are places as 1, 1, 1, 1. तो आपके सारे को मैंने एक्टिव कर दिया. This is the way. Okay. Then INTR is interrupt request are coming and interrupt enable is 1. Then you get your microprocessor will read your interrupt. आपका जो प्रोसेसर है डेट इज़ योर, यहाँ पर आपका एक प्रोसेसर लगा होगा. देन दिस इज़ योर प्रोसेसर. देन दिस माइक्रो प्रोसेसर विल रीड योर इंटरप्ट, क्योंकि आपने इंटरप्ट इनेबल को एक्टिव कर दिया. यहाँ पर देखिए क्या M5.5, M6.5 और M7.5 ये क्या है आपका, ये मास्क इंटरप्ट है. दिस इज देयर इज एन अनदर पॉसिबिलिटी. अब इसमें क्या होता है, इफ़ यू वांट सपोज इफ़ यू वांट 5.5 ओनली इनेबल, आप चाहते हैं कि ओनली RST 5.5 इनेबल हो, RST 6.5 और RST 7.5 क्या हो, ऑफ स्टेट में रहे. तो आपने तो इंटरप्ट इनेबल कर दिया, ऑल आर इनेबल. बट ओनली इफ़ यू वांट, आपका प्रोसेसर चाहता है, प्रोसेसर ने क्या किया, प्रोसेसर के पास ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ही वांट only RST 5.5 enable and RST 6.5 and RST 7.5 is disabled, then this value is 0. आप देख रहे हैं ये कब एक्टिव हो रहा है, 0 पर ये एक्टिव होगा. और इस केस को आप क्या कीजिए, हाई स्टेट में रख दीजिए. जैसे ये हाई स्टेट में होगा, ये देखिए ये यहाँ पर बबल है, बबल का मतलब है ये लो स्टेट में इनेबल होगा. तो ओनली द RST 5.5 इज इनेबल.
और आपकी इच्छा है कि नहीं हम RST 7.5 को इनेबल रखें और RST 5.5 को इनेबल रखें, at the time this value is also 0. So the microprocessors are knows which one, if you want only RST 7.5 इनेबल अगर आप रखना चाहते हैं तो दैट M 7.5 को आप इनेबल रखेंगे। तो इंडिविजुअली भी इस केस में हमने देखा जो आपका मास्केबल और वेक्टर्ड इंटरप्ट है, इसमें हम लोग इंडिविजुअली भी ऑन रख सकते हैं या ऑल को एक साथ भी ऑन रख सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशंस कि आपको किस इंटरप्ट को इनेबल रखना है, किस इंटरप्ट को डिसेबल रखना है। ठीक है, तो दिस आर द वे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन में, जैसे एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऑप्शंस होता है कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन दिस आर द वन इंटरप्ट, आपने इंटरप्ट को ऑन कर लिया, बट उस इंटरप्ट में भी आपने क्या किया कि ओनली योर पेरेंट्स विल कॉल, आपके सिर्फ पेरेंट्स कॉल करेंगे, देन वी विल कॉल रिसीव्ड, ऑल को आपने क्या किया ब्लॉक स्टेट में रख दिया और सिर्फ अपने पेरेंट्स के नंबर को आपने अनब्लॉक स्टेट में रखा। तो क्या हुआ कि जो भी कॉल आपको आएगा वो तो कॉल आप रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि सबको आपने क्या किया ब्लॉक कर दिया है, ओनली द पेरेंट्स के नंबर को आपने एक्टिव रखा है, तो दैट पेरेंट्स नंबर विल रिसीव। तो दिस इज द वे इन RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5। इसमें क्या हो रहा है कि आपने इंटरप्ट को तो इनेबल कर दिया, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन को तो इनेबल कर दिया, बट पार्टिकुलर नंबर को ओनली एक्टिव रखा और रेस्ट नंबर को क्या किया ब्लॉक रखा। दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड। नाउ देयर इज एन वन पॉइंट, there is an one point RST 7.5 memory. This is the RST 7.5 memory is only present in this is the one of the advantage in this RST 7.5. This is the one is called as your flip flop. ये flip flop क्या करता है कि सपोज आप अगर किसी भी इंटरप्ट सिग्नल को भेज रहे हैं जैसे RST 6.5, RST 5.5, सपोज फॉर टाइम your processor will disable all the interrupts. ठीक है, इफ़ यू सेंड द इंटरप्ट RST 7.5, सपोज व्हाट आर द एडवांटेज, क्या एडवांटेज है इस मेमोरी का वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सपोज मान लीजिए कि आप इंटरप्ट इनेबल कर दिए, ठीक है, इंटरप्ट इनेबल आपका है, बट फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि RST मतलब आपका जो प्रोसेसर है सारे को आपको सारे इंटरप्ट इनेबल नहीं मैं कर रहा हूँ, सारे प्रोसेसर को उसने डिसेबल फॉर्म में रखा है, डिसेबल इंटरप्ट रखा है। तो क्या हो रहा है कि आप RST सिग्नल सेंड कर रहे हैं, जैसे आप इंटरप्ट RST 7.5 और RST 6.5 दोनों सिग्नल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपको पता है कि एट द लास्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन आपका प्रोसेसर क्या करता है, इंटरप्ट को रीड करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने वेट रिकॉर्ड कर, तो RST 7.5 एंड RST 6.5, तो अब क्या हो रहा है कि देखिए RST 6.5 में क्या हो रहा है, अब आपका प्रोसेसर ने सारे इंटरप्ट को डिसेबल किया है, एट ए टाइम आपके प्रोसेसर ने इनेबल किया, एट द टाइम जो आप एक सिग्नल सेंड कर रहे थे, आप जो सिग्नल सेंड कर रहे थे, तो आपको पता है कि लास्ट टी मतलब आपको जब बताया गया था कॉल इंस्ट्रक्शन में 18T स्टेट है, तो 17.5T स्टेट तक आपके सिग्नल इनेबल स्टेट होने चाहिए, देन योर प्रोसेसर विल रीड द इंटरप्ट। सपोज एट द टाइम 18T स्टेट तक आपका माइक्रो प्रोसेसर डिसेबल रहा, एट द टाइम द माइक्रो प्रोसेसर इज इनेबल, आपने आपका जो प्रोसेसर है वो अपने इंटरप्ट को इनेबल किया, तो जो आपका ये टाइम सिग्नल जो RST 6.5 का सिग्नल था वो तो अगेन रीसेट हो गया क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के बाद वो रीसेट फॉर्म हो गया। बट इस RST 7.5 में क्या था कि ये मेमोरी विल स्टोर योर सिग्नल, आपका ये जो मेमोरी है ये हाई सिग्नल को स्टोर रखता है, और जैसे आपका प्रोसेसर इनेबल होता है, इंटरप्ट को इनेबल करता है, दैट विल बी सेंड द सिग्नल। तो दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज इन द RST 7.5 में, ये एक एडवांटेज रहता है RST 7.5 को, ये एडवांटेज है कि उसमें एक मेमोरी ऐड कर देते हैं जो जैसे इट विल बी इंटरप्ट इनेबल होता है दैट विल बी सेंड द सिग्नल, क्योंकि ऑलरेडी फ्लिप फ्लॉप में वो स्टोर रहता है। दिस इज द वे, these are the advantage in RST 7.5 and that will be discussed in the later. Now the 8085 maskable and vectored interrupt process, the interrupt process should be enabled using the EI instructions, just we discussed already in the INTR
इंटरप्ट प्रोसेस को हम लोग तभी इनेबल कर सकते हैं जब हम लोग EI इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। द 8085 चेक्स द इंटरप्ट ड्यूरिंग द executions of every instruction. At the last T states we will be say that your microprocessors will check if there is any interrupts are coming or not. If there is an interrupt and if the interrupt is enabled using the interrupt mask, the microprocessor will complete the executing instruction and reset the interrupt flip flop. तो क्या होता है कि जैसे ही देखिए माइक्रो प्रोसेसर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा कि RST 7.5C in this case आप माइक्रो प्रोसेसर विल रीड सपोज इफ़ यू इनेबल द इंटरप्ट, आपने क्या किया कि इंटरप्ट को इनेबल कर दिया। सपोज इफ़ यू इनेबल द इंटरप्ट, आपने इंटरप्ट को इनेबल किया, दिस मास्क RST 7.5 RST 5.5, सपोज RST 5.5 को हम चाह रहे हैं कि द इंटरप्ट विल सेंड, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, 0 कर दिया, एंड डेट विल बी सेंड द माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर विल रिसीव द सिग्नल, अगेन वी रीसेट ऑल द, तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे इसको एक्सेप्ट कर लेता है RST 5.5 के इंटरप्ट को, ही विल रीसेट, और वो क्या करता है, रीसेट प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ठीक है। Same way the microprocessor is then execute a call instruction, then the send of execution of appropriate location of the interrupt vector table. जैसे फॉर एग्जांपल कॉल इंस्ट्रक्शन की बात किया, मैक्सिमम 18 T स्टेट्स होता है, एंड सपोज द माइक्रोप्रोसेसर विल रीड द इंस्ट्रक्शन, माइक्रोप्रोसेसर जो है वो इंटरप्ट को रीड कर लेता है, और ये दिस इज द वेक्टर्ड इंटरप्ट है, तो वो पार्टिकुलर वेक्टर टेबल पर वो सेंड कर देते हैं। These are the 8085 maskable vector interrupt process. When the microprocessor execute the call instruction, it save the address of the next instruction of the, आपको ये बताया गया था कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रोसेसर है, और दिस प्रोसेसर अगर आपका मान लीजिए ये कॉल इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है, सपोज कॉल इंस्ट्रक्शन को, दिस इज योर कॉल इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, एट द टाइम दिस इंटरप्ट विल कमिंग, आपका इंटरप्ट कमिंग हुआ, देयर इज एन 17.5 T स्टेट, दिस इंटरप्ट को आपका माइक्रो प्रोसेसर सपोज रीड कर लिया, तो क्या होगा कि सपोज उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना था, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जब माइक्रो प्रोसेसर आपका रीड कर लेता है, माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चल जाता है कि कोई इंटरप्ट आ रहा है, तो क्या करते हैं आप रेस्ट प्रोग्राम को क्या करते हैं, सस्पेंडेड कर देते हैं, और इंटरप्ट सिग्नल को आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या होगा, जैसे आप इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है, तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो इस आफ्टर द इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उसके जो नेक्स्ट प्रोग्राम का जो एड्रेस है, डेट एड्रेस विल बी स्टोर इन योर स्टैक, स्टैक में हम लोग उसके एड्रेस को पहले स्टोर कर लेते हैं, आफ्टर दैट विल बी एग्जीक्यूट द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम लोग इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर जम्प टू द स्पेसिफिक सर्विस रूटीन, और माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि जो ये मास्केबल और वेक्टर इंटरप्ट हैं, माइक्रो प्रोसेसर नो अबाउट द एड्रेस, और उस एड्रेस पर माइक्रो प्रोसेसर जंप कर जाता है उस एड्रेस पर, और उसके अंदर जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो उसके सर्विस रूटीन है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। द सर्विस रूटीन मस्ट इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन EI, तो जो भी इज टू री इनेबल द इंटरप्ट प्रोसेस। तो देखिए क्या होता है कि सपोज अगर मान लीजिए ये इस एड्रेस पर जंप करेगा, तो इस एड्रेस पर माइक्रो प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन हम लोग ऑलरेडी लिखते हैं, डेट इज EI, again we will be written as EI inside the service routine, that is your enable interrupt, and then process will be continue start. After end of the service routine, after the work is completed, आपका जो ये वर्क कंप्लीट हो जाता है, जो आफ्टर द इंटरप्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। सपोज मैंने कहा था कि मान लीजिए कि फॉर इन द इंडस्ट्रीज़ में अगर कहीं पर आग लग जाती है, तो देयर इज़ एन अलार्म, अलार्म इज अलार्म बजर स्टार्ट हो जाता है। After the work is completed, interrupt work is completed, then it is return instruction is returned to the executions of the next instruction, that will be go to the return instruction, जैसे वो पहुंचता है रिटर्न पर, then the stack pointers के जो एड्रेस हैं, that will be go to your program counter, और वो प्रोग्राम काउंटर में सेंड हो जाता है। द स्टैक जो पहले पुश ऑपरेशन हुआ, पुश ऑपरेशन में आपने क्या हुआ कि द एड्रेस विल स्टोर, एड्रेस स्टोर हो चुका था, एंड आफ्टर दैट देयर इज एन अगेन पॉप ऑपरेशन, दैट एड्रेस विल गोज टू द प्रोग्राम काउंटर, और आपके प्रोग्राम काउंटर में वो
सेट हो जाता है एंड देन रिटर्न विल बी एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. Now the next we discuss about the manipulating the mask. The interrupt enable flip-flops are manipulating using EI and DI instructions. The individual mask RST 5.5, RST 6.5 and RST 7.5 are manipulating using the same instruction. तो मैनिपुलेटिंग का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप किस अकॉर्डिंग टू कि आप RST 5.5, RST 6.5 और RST 7.5 विच आप किस इंटरप्ट को इनेबल चाहते हैं वो हम लोग करते हैं यूजिंग द सेम इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड ए सेट इंटरप्ट मास्केबल. Set interrupt maskable. This instruction take the bit pattern in the accumulator. हम लोग ये देखिए सिम इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं. दिस इंस्ट्रक्शन टेक्स द बीट पैटर्न इन द accumulator and it applies to the interrupt mask enabling and disabling the specific interrupts. तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हम accumulator में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और सिम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं. सेट इंटरप्ट मास्केबल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम लोग किस तरह से इंटरप्ट्स को इनेबल और डिसेबल करना स्टार्ट करते हैं. नाउ दिस इज द हाउ द सिम दैट इज कॉल्ड एज सेट इंटरप्ट मास्क. सेट इंटरप्ट मास्क सेट इंटरप्ट मास्केबल इंटरप्ट्स द accumulator. Now these are the this is the 0, this is the 8-bit accumulator data, this is the 8-bit accumulator data, and this is the D0, D1, D2, D3, D4, D5 and D7. Now in D0 that will be stored this M7 5.5. This is called as maskable. That will be see in this figure, that point. This will be understand. This is your M 5.5, M6.5 and M7.5 and that are enable when the values are 0. जब ये वैल्यू 0 होगा इसका मतलब this are available, this mask are, this interrupts are available. Or this values are 1, it means that that mask is called as maskable form. There is no availabilities are present. See, in the same instruction set interrupt request, this is M7.5, that is RST 5.5 is mask, M6.5 this is RST 6.5 is masking and M7.5 RST 7.5 is masking. It means that this value, sorry it's my mistake, there is in value 0, we change, not as 0 and 1, okay, 0 and 1. If M5.5, if M6.5 and M7.5 values are 0, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है इसका मतलब ये है कि दिस इंटरप्ट्स आर अवेलेबल, ये इंटरप्ट्स आपके अवेलेबल हैं, दिस इंटरप्ट्स आर अवेलेबल. इफ M5.5, M6.5 and 7.5 values is equal to 1, that is masked. Masked means says that there is this interrupts are not available here, इंटरप्ट्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है. नाउ दिस MSE मास्क सेट इनेबल, मास्क सेट इनेबल, इफ दिस इज 0, अगर ये वैल्यू 0 होगा MSE तो इग्नोर 0 2, इग्नोर बिट्स 0 and 2. इसका मतलब अगर MSE एक स्विच की तरह काम करता है, अगर ये आप M5.5, M6.5 और M7.5 को आप ऑन करना चाहते हैं, मतलब ये है कि जब तक ये स्विच ऑन नहीं होगा तो ये वर्किंग मोड में नहीं होगा, चाहे इसकी वैल्यू 0 हो या 1 हो, इसको आपको ऑन स्टेट में पहले करना होगा. जब ये ऑन स्टेट में होगा तब ये एक्टिव आपका वर्किंग करने लगेगा, तब इसका 1 और 0 को हम रीड आउट कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज़ द MSE. अगर MSE का मतलब ये मास्क सेट इनेबल, अगर ये 0 इसकी वैल्यू होती है तो 0 to 2 जो आपका वैल्यूज़ है, दिस ये जो आपका 0 से 2 की बात कर रहा है, ये आपका क्या रहेगा, इग्नोर द बिट्स. इस बिट की कोई भी इग्नोरेंस करते रहेंगे, इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे. इफ़ द MSE इज इक्वल टू दिस मास्क सेट इनेबल इज 1, सेट द मास्क अकॉर्डिंग टू इट्स बिट्स 0 to T. और तब हम लोग मास्क को सेट करेंगे, तब इसको हम लोग एक्टिव करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ क्या है, 0 है या 1 है. ठीक है. अगर ये हम MSE को 0 करते हैं तो इस सारे को इग्नोर, मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है.
और MSC की वैल्यू 1, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे। अगर MS 5.5 की वैल्यू 0 है तो मास्क अवेलेबल है, अगर 1 है तो मास्क नॉट अवेलेबल है। दिस आर द मीनिंग। देखिए दिस इज़ द RST 7.5, ये RST 7.5 क्या है, दिस इज़ द मेमोरी। वी सी दिस R7.5, this we'll discuss, this is the R7.5, this memory, ये जो फ्लिप फ्लॉप है this is R7.5, that is there, this R7.5, this R7.5 force R7.5 फ्लिप फ्लॉप टू रीसेट। अगर R7.5 फ्लिप फ्लॉप अगर आपका रीसेट है, ठीक है, अगर आप R7.5 फ्लिप फ्लॉप को अगर आप रीसेट करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू को अगर आप 0 रखते हैं तो क्या होगा, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है, जो आपका RST 7.5 है, वो ऑफ स्टेट में होगा। ठीक है, तो अगर हमें RST 7.5 में अगर हम मेमोरी में 1 रखते हैं तो इट इज़ एक्टिव हाई, तो मतलब फ्लिप फ्लॉप विल रीड। RST अगर हम इसे फोर्सली से रीसेट कर देते हैं, इसके इट मीन्स सेज डेट योर RST 7.5 जो है आपका, वो अगर RST 7.5 अगर आपका 0 स्टेट में है, मतलब आप फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका आउटपुट क्या होगा, 0 जनरेट करेगा। इसका मतलब RST 7.5 अब, क्योंकि आप देखिए सी, अगर इसमें सी अगर हम ये RST 5.7.5 में अगर हम यहाँ 0 रीसेट कर देते हैं तो यहाँ पर 0, तो आउटपुट भी आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एंड गेट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेट, अगर हमें RST 7.5 को एक्टिव रखना है, मतलब अगर हमें RST 7, तो हमें R7.5 को 1 स्टेट में करना होगा। ठीक है, तो दिस इज द वे फोर्स RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप टू रीसेट। नेक्स्ट है, दिस इज द X axis, दिस इज नॉट यूज्ड, D5 is not used. SDE, that is enable serial data, it is very important, enable serial data। if SD is 0, अगर SD 0 होगा, जैसे सीरियल इनेबल सीरियल डेटा, तो इग्नोर बीट 7, आप तो इग्नोर इस बीट को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इग्नोर बीट 7, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो सेंड बीट ऑफ SOD पिन। सीरियल आउटपुट, सीरियल डेटा आउटपुट है, मतलब एक आपने देखा एक पिन आपका सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल डेटा आउटपुट, तो ये सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा, दिस आर द पिन्स आर यूज्ड हियर एज सीरियल डेटा आउटपुट। तो अगर हम इंटरप्ट पिन को इनेबल करते हैं, सपोज एग्जांपल में कि अगर आप ये पिन का काम कर रहे हैं, इंटरप्ट की पिन का काम कर रहे हैं, तो आपको ये जो आपका SD की वैल्यू होनी चाहिए 0। अगर आप SDO मतलब सीरियल डेटा आउटपुट ट्रांसफ़र का काम करेंगे, तो देन सीरियल डेटा आउटपुट को इनेबल करने के लिए आपको SDE पिन को 1 करना होगा, तब आपका ये सीरियल डेटा आउटपुट आपका 1 होगा, देन इट विल बी वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल, तो आप सिम में देख रहे हैं कि अगर आपको सीरियली डेटा को आउटपुट ट्रांसफ़र करना है तो आपको सिम इंटरप्ट मतलब सिम इंटरप्ट का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्लास में आप जब देखेंगे रिम इंस्ट्रक्शन की, जब हम बात करेंगे रीड इंटरप्ट मास्केबल की बात करेंगे, तब आप वहाँ पर देखेंगे कि हम लोग सीरियल इनपुट डेटा की बात कर रहे हैं। तो सीरियल अगर आपको आउटपुट डेटा को ट्रांसफ़र करना, सीरियली आउटपुट डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तब आप यूज़ करेंगे SD पिन को 1 करेंगे और सीरियली आउटपुट डेटा करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज योर SIM, set interrupt maskable, and we will be understand according to your example. Now SIM and their interrupt mask. This beat 0 is the mask of RST 5.5, beat 1 is the mask of RST 6.5, beat 2 is the mask of RST 5.5। आप देख सकते हैं, this is your bit 0, sorry, this is the bit 0, bit 1 and bit 2. Okay, if the mask bit is 0, the interrupt is available, if the mask bit is 1, the interrupt is mask। we will be see कि जब ये 0 था तो एबिलिटी था और 1 था तो मास्क था, this will be discussed।
Bit 3 is the mask set enable is an enable for setting the mask. जब तक ये enable नहीं होगा तो आपका mask setting set नहीं करेगा. If it is the set to 0, the mask is ignored. If it is set to 0, the mask is ignored and the old setting remain. जो old setting है आपका वो remain रहेगा. If it is set to 1, the new setting is are applied. तो जो new setting है वो आपका applied हो जाएगा. The same instruction is used for multiple. इसका मतलब देखिए क्या है कि setting remain और old setting remain का मतलब ये कि सपोज आपने पहले से एक सेटिंग किया हुआ है कि सपोज RST 5.5 को आप इनेबल रखें सिर्फ, और न्यू सेटिंग में आप ये चाहते हैं कि हम RST 5.5 RST 7.5 को ऑल्सो इनेबल कर दें. तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन MSC को जो आपका है उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, और इनेबल करने के बाद आपको एक प्रोग्रामिंग करना होगा. देन वी विल बी इनेबल द RST 7.5 ऑल्सो. Okay, these are the meaning. The same instruction is used for multiple purpose and not for the setting of interrupt mask. It is also used to control the functioning such as serial data transmission. Serial data का हम लोग transmission को also use करते हैं. Therefore, bit 3 is necessary to tell the microprocessor where or not the interrupt mask should be modified. RST 7.5 interrupt is only the 8085 interrupt that has memory. आपने देखा था कि सिर्फ मेमोरी जो है आपका RST 7.5 में ही हम लोग यूज़ करते हैं. If the signal on RST 7.5 arrives while it is masked, the flip-flop will remember the signals. तो just we say that कि RST 7.5 अगर arrived होता है और when it is masked, द फ्लिप फ्लॉप विल रिमेंबर द सिग्नल. आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो रिमेंबर द सिग्नल. मतलब ये कह रहे हैं कि आपने RST 7.5 को आपने RST 7.5 में एक सिग्नल सेंड किया, तो डेट सिग्नल विल कहाँ स्टोर होगा, आपका वो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा. बट आप मास्क 7.5 M7.5 को आपने इनेबल नहीं किया है, तो क्या होगा, इनेबल नहीं किया आपने तो क्या होगा कि वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेगा. बट जब आप उसको इनेबल कीजिएगा एट द टाइम द सिग्नल विल ट्रांसमिट, क्योंकि डेट विल बी ऑलरेडी स्टोर्ड इन द मेमोरी. बट आप अनदर केस में देखिए 6.5 और 5.5 में ये फैसिलिटीज़ नहीं है. जब तक आप मास्क को इनेबल करते हैं और आपका सिग्नल जो आप सिग्नल 7.5 मान लीजिए क्लॉक साइकिल तक आपका ऑन रहा, अदर वो रीसेट हो गया, उसके बाद आप मास्क को इनेबल करते हैं तो द सिग्नल विल नॉट गो टू द माइक्रो प्रोसेसर आपके, क्योंकि वो ऑलरेडी रीसेट हो गया है. बट ये एक एडवांटेज है आपके RST 7.5 में. When RST 7.5 is unmasked, the microprocessor will be interrupt even if the device has removed the interrupt signal. Just मैंने वो कहा था कि जब आपका वो जैसे आप उसको अनमास्क करते हैं, RST 7.5 को आप अनमास्क कर देते हैं, मतलब M7.5 को आप एक्टिव करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर विल इंटरप्ट इवन इफ द डिवाइस इज रिमूव द इंटरप्ट सिग्नल. उसके बाद भी आपने इंटरप्ट सिग्नल को रिमूव कर दिया, लेकिन तब भी आपका माइक्रो प्रोसेसर रीड कर लेगा. क्यों? क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है वो. दिस आर द एडवांटेज. देन द फ्लिप फ्लॉप विल बी ऑटोमेटिकली रीसेट व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर रेस्पॉन्ड टू एन RST 7.5 इंटरप्ट. तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर आपका उसको इंटरप्ट को एक्सेप्ट करेगा, जैसे RST 7.5 को आपका माइक्रो प्रोसेसर एक्सेप्ट कर लिया, देन इट विल बी रीसेट द फ्लिप फ्लॉप. आपके फ्लिप फ्लॉप को वो रीसेट कर देगा. Bit 4 of the accumulator in the same instruction allows explicitly resetting the RST 7.5 memory even if the microprocessor did not respond to it. तो ये सिम इंस्ट्रक्शन में आपने देखा था कि bit 4 of the accumulator सिम instruction allows the explicitly resetting. Explicitly मतलब by forcefully it will be resetting the RST 7.5 memory even if the microprocessor did not respond to it. ठीक है, अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर आपका रीड नहीं करता है, तो सिम इंस्ट्रक्शन में उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक वर्ड यूज किए थे, देखिए दिस. ठीक, दिस इज द मीनिंग. हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. देखिए
हर का मीनिंग वी विल बी अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पर RST 7.5 की हम बात कर रहे हैं। ये RST 7, जैसे आपको ये स्विच को M 5.5 को इनेबल करना है, अगर मास्क करना है तो 0, सॉरी अवेलेबल करना है तो 0, मास्क करना है तो 1। RST 5.5 को अगर आपको रीसेट करना है, RST 5.5 को अगर आपको फोर्सली रीसेट करना है, मतलब आपको उस मेमोरी को रीसेट करना है, तो यहाँ पर आपको 1 पुट करना होगा। जब आप इस पिन में 1 अप्लाई करेंगे, जब आप फोर्थ पिन में बिट 4 में 1 अप्लाई करेंगे तो फोर्सली रीसेट कर देगा आपके मेमोरी को। समझ गए? इसका मतलब अगर आपको RST 5.5 को RST 7.5 के फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना है तो इस पिन पर आपको हाई स्टेट अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बिट 4 को अगर आप 1 करते हैं तो आपका RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप को आप रीसेट करेंगे। These are the meaning. Okay. Then bit 4 accumulator in the SIM instruction is explicitly resetting the RST 7.5 memory even the microprocessor did not respond. जब तक माइक्रोप्रोसेसर, एक तो आपका ये तरीका है कि माइक्रोप्रोसेसर अगर आपके RST 7.5 का रिस्पॉन्ड कर लेता है तो ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। बट अगर आप बाय फोर्स चाहते हैं कि हम उसे रीसेट करें तो आप RST बिट 4 को 1 कर देंगे तो वो बाय फोर्स आपके फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। ठीक है। सिम एंड इंटरप्ट मास्क। सिम इंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड परफॉर्म द सीरियल डेटा ट्रांसमिशन आउट ऑफ 8085, दैट इज SOD। ये हम लोग 8085 का जब आप पिन डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर SOD पिन का बात करेंगे, सीरियल आउटपुट डेटा। 1 bit at a time can be sent out serially over the SOD। 1 by 1 बीट को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर SOD। बिट 6 इज यूज्ड टू टेल द माइक्रोप्रोसेसर और नॉट परफॉर्म द सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। आप देखे थे कि बिट 6 जो आपका है SD सीरियल डेटा इनेबल जो आप देख रहे थे, उस केस में था कि अगर वो 0 होगा तो इग्नोर द बिट 7 को भी इग्नोर करेगा, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा। दिस आर द वे। If 0 they do not perform the serial data transmissions, or if 1 then do. The value to be sent out the SOD has to be placed in the bit 7 to the accumulator. Bit 5 is not used in the SIM instruction। आपने देखा था bit 5 हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। There is one examples and then we understand. Suppose example क्या है आपका, if set the interrupt mask of RST 5.5 को इनेबल करना है, RST 6.5 को आपको मास्क करना है और RST 7.5 को आपको इनेबल करना है। मतलब आपको RST 6.5 को डिसेबल के फॉर्म में रखना है, तो मास्किंग के फॉर्म में रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको RST 5.5 को इनेबल करना है तो बिट 0 को क्या करना पड़ेगा, 0। RST 6.5 को आप मास्क करेंगे तो मास्किंग के लिए कौन सा बिट 1 को क्या करना पड़ेगा, 1। RST 7.5 बिट 2 को 0। आप देख रहे हैं इसको 0 1 0, 0 का मतलब क्या होता है, अवेलेबल, और 1 का मतलब मास्क। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक आपको पता चलेगा। बिट 5 MSC को क्या करना पड़ेगा, जब तक आप 1 नहीं करेंगे तब तक आपका ये तीनों बिट एक्टिव मोड में नहीं होगा, तो आपने इसको क्या कर दिया, 1। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, मास्क 7.5 को आप एक्टिव कर रहे हैं। तो जब आप 7.5 को आप एक्टिव कर रहे हैं, मतलब RST 7.5 को आप एक्टिव कर रहे हैं, सीधे इनेबल कर रहे हैं, आपने यहाँ लिखा इनेबल कर रहे हैं, इसका मतलब जो RST 7.5 का जो मेमोरी है, इस मेमोरी, तो इसको हमें रीसेट करना है या सेट करना है, सेट करना है, क्योंकि रीसेट करेंगे तो क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाएगा। हमें सेट करना है, तो सेट करने के लिए अगर हम इस पिन पर आपको बताए थे, अगर इस पिन को हम 1 कर देंगे तो आपका फोर्सली रीसेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वर्ड किया डोंट रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। आपको डोंट रीसेट द फ्लिप फ्लॉप, इसका मतलब बीट 4 को क्या करना पड़ेगा, 0। अगर हम बीट 4 को 1 कर देंगे तो आपका फोर्सली वो सेट हो जाएगा, सॉरी रीसेट हो जाएगा, डेट इज़ 0। बिट 5 नॉट यूज्ड विद 0। डोंट यूज़ द सीरियल डेटा, हमें तो इंटरप्ट का काम करना है, सीरियल डेटा का काम नहीं करना है, तो हम इसे 0 करेंगे और बिट 7 को फिर कोई काम नहीं है। तो दिस इज़ द डेटा 0 0 0 0 1 0 0। तो ये आपका क्या है, ये आपका टोटल एक्यूमुलेटर है। अगर आप देखिए तो जस्ट मैंने क्या कहा,
सिम का जो काम करता है वो एक्यूमुलेटर में कंटेंट कर। तो एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है? 8 बिट। तो ये 8 बिट का है। इस 8 बिट में इसको क्या कहेंगे? देखिए आपका क्या है, 8 + 2, ये 8 है, ये 2 है। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, हेक्साडेसिमल में। तो 8 2 क्या हो गया? 10। ठीक है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं? ए। तो अब हम प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे इनेबल इंटरप्ट्स। सबसे पहले हमने क्या किया? इनेबल इंटरप्ट्स। उसके MBIA, 0A। देखिए 0A क्यों लिखे? क्योंकि आपका देखिए ये वैल्यू क्या आ रहा है, सी दिस वैल्यू। आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में ये क्या होगा? 4, और ये क्या होगा? 4। तो ये क्या हो गया? 0, और ये 4 क्या हो गया? ए। ठीक है, दैट 4 4। तो 0A, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एक्यूमुलेटर। देन वी यूज द सिम इंस्ट्रक्शन। देन यू यूज़ द सिम इंस्ट्रक्शन। देन यूज सिम इंस्ट्रक्शन जैसे आप अप्लाई किए तो आपका ये जो पार्ट है वो मास्क इनेबल हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर को आप इंटरप्ट इनेबल कर दिए। तो दिस इज द वे वी send the signal to the microprocessor. Next we discuss about the trigger level. Triggering is we already discussed in the your digital electronics. RST 7.5 आपका पॉजिटिव एज सेंसिटिव है, मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। And when the positive is apparent, RST lines is logic 1 stored in the flip-flop as a pending interrupts. Since the values has been stored in the flip-flop and does not to be high when the microprocessor check the interrupt to be recognized, the line must go to the 0 and back to 1 before the new interrupt is recognized. जब तक न्यू इंटरप्ट रिकॉग्नाइज नहीं होता है तब तक इसकी वैल्यू लो स्टेट में रहती है, और जैसे न्यू इंटरप्ट रिकॉग्नाइज होता है ये वैल्यू 1, ट्रिगर 1 कर देता है। RST 6.5 और RST 5.5 आपका पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, एंड द इंटरप्ट सिग्नल मस्ट बी रिमेन प्रेजेंट अंटिल द माइक्रो प्रोसेसर चेक फॉर द इंटरप्ट। ये 1 रहता है तब तक जब तक माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटरप्ट को चेक करता है कि एनी सिग्नल्स आर प्रेजेंट या नॉट। These are the very important. The RST 7.5, RST 5.5 and 6.5 are level triggered, and RST 7.5 is a positive triggers. Okay. So basically these are the interrupts types, and today we discuss about the SIM. This is very important point. SIM, set interrupt maskable instructions. We understand. Now we complete